Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle, and the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello जी, कैसे हो? I hope you are doing perfectly fine. Okay, तो आज हमारा जो ये लेक्चर है, मेरा पढ़ाने का, आपका सीखने का, वो OCM का जो सब्जेक्ट है 12th स्टैंडर्ड 11 के लिए महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक के हिसाब से बिजनेस सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर द पास्ट मुझे लगता है 1 या 2 लेक्चर्स के लिए हमने बिजनेस सर्विसेज का चैप्टर स्टार्ट तो कर दिया था। मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन किया कि ये है तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स के लिए बिजनेस सर्विसेज पूछा जाता है। सर्विसेज का मतलब क्या है ये एक्सप्लेन किया गया है, उसके फीचर्स क्या है वो एक्सप्लेन किए गए हैं। एंड लास्ट टाइम हमने बैंक्स पे ध्यान दिया कि बैंकिंग की जो एक बिजनेस सर्विस होती है वो मतलब क्या है, उसकी टाइप्स क्या है। आज हम उस बैंक्स के फीचर्स समझने की कोशिश करेंगे। ओके, या तो कह सकते हैं फंक्शंस समझने की कोशिश करेंगे। मतलब एक बैंक अगर शुरू हुआ है तो वो क्या करेगा, वो उसका फंक्शन होता है। ब्रॉडली उसको 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक तरफ पे अगर आप ध्यान दो तो वो प्राइमरी फंक्शन है, दूसरी तरफ पे अगर आप ध्यान दो तो वो सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी पहला होता है रोटी कपड़ा मकान, हर बैंक को इतना तो करना चाहिए। टुडे वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस द प्राइमरी फंक्शंस, सो दिस सेकेंडरी फंक्शंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। In the upcoming lecture, the secondary function, separately called as agency function and separately called as utility function, will be discussed. Usually, whenever a question is asked in the board examination, पूरा रामायण नहीं पूछते क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। They may ask you primary functions or they may ask you secondary, and maybe in secondary specifically ask you agency or utility. Today and in the next 2 lectures we will complete the functionality of banks. Okay, तो सबसे सिंपल फंक्शन बैंक का क्या होता है? पैसा लेना देना, लेन देन। लेने को आप एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कहते हो और देन को ग्रांटिंग फाइनेंस, वो लोन्स एंड एडवांसेस में आता है। टुडे वी विल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस कि बैंक जब पैसा लेती है तो क्या नाम देती है, वो जो पैसा लेती है वो उसको कैटेगराइज कैसा करती है। सो मेरे पीछे अगर आप ध्यान दो, कृपया करके ध्यान दें, सबसे प्राइमरी फंक्शन है बैंक का एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। मतलब कोई भी कमर्शियल बैंक हो वो तो यही काम करता है,
वो इंडिविजुअल से या ऑर्गेनाइजेशन से। देखो इंडिविजुअल मतलब आप इंडिविजुअल, आपके मम्मी पापा, ये सारे इंडिविजुअल हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी मंदिर, मस्जिद, रिलीजियस स्थान, ओके, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। हॉस्पिटल, ये सारे क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस। इनको भी तो पैसा मिलता है, ये भी अपना पैसा काना का पे जमा करते रहेंगे, तो बैंक में जाके ये सारे लोग पैसा जमा करते हैं। ओके, ये अलग अलग कैटेगरीज में आता है। सो एक कैटेगरी है टाइम डिपॉजिट, दूसरा है डिमांड डिपॉजिट। सो आई रिपीट, जब हम कहते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, उसमें दो तरीके के डिपॉजिट आते हैं। एक होता है टाइम डिपॉजिट। सिंपल सी बात है, आप मेरे कस्टमर हो, अगर मैं बैंक हूँ, बराबर, आप या तो इंडिविजुअल हो या तो ऑर्गेनाइजेशन हो, आप मुझे पैसा दोगे। तो टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या है, एक फिक्स्ड टाइम के बाद 6 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद में वो पैसा आपको लौटा दूंगा। दैट इज कॉल्ड एज ए टाइम डिपॉजिट। अब टाइम डिपॉजिट के अंदर देर इज 1 or 2 वेराइटीज। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड डिपॉजिट। व्हाट डज दैट मीन? कभी कभी लोगों के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा रहता है, काफ़ी लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहता है, लाखों की करोड़ों की बात हो रही है, तो वो एक्स्ट्रा पैसा जो वो अपने एवरीडे लाइफ में यूज़ नहीं करेंगे, उसको जाके वो बैंक में क्या सा फिक्स डिपॉजिट में जमा करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा हाई रहता है और ये एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए होता है। तो आपने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मे बी 6 महीने के लिए, मे बी 8 महीने के लिए बैंक में पैसा डाल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई मिलता है। नॉर्मली आप इसमें से विड्रॉवल पैसा एज अ कस्टमर नहीं निकाल सकते, बट अगर कोई घर पे इमरजेंसी आ गई और आपको वो एफडी के पैसे की ज़रूरत पड़ी, वो एफडी को आप तोड़ सकते हो। बैंक जानता है और बैंक इंटरेस्ट में कुछ हिसाब लगाता है, आपके इंटरेस्ट को थोड़ा कम करता है, बट बाकी आपके पूरे पैसे आपको लौटा देता है। सो इसमें कोई अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप बैंक के पास में पैसा एक बार देते हो, वो आपको एक रिसिप्ट देती है एफडीआर करके, उसके अंदर पूरे डिटेल्स रहते हैं कि आपने इतने पैसे इतने रेट पे इतने टाइम के लिए बैंक को दिए हैं। ये है पहला टाइम डिपॉजिट। दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में इफ़ यू वांट टू टीच योरसेल्फ, अगर आपको अपने आप को सिखाना है कि मैं हर महीने 2000 बचाऊंगा, 4000 बचाऊंगा, 10,000 बचाऊंगा, तो आप बैंक में जाकर उनको बोल सकते हो मुझे ना आरडी रिकरिंग डिपॉजिट स्टार्ट करना है। तो बैंक आपको फॉर्म देगा, सर ये इसमें टिक मार्क करो, 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, मतलब वट एवर यू टिक मार्क, आपको 15 दिन के बाद में जाकर 2000 डालना है, 30 डेज के बाद में जाकर 2000, 30 डेज के बाद में 2000, 30 डेज के बाद में 2000। तो जो डिपॉजिट आप करते हो वो रिकर होता है, 30 30 30 30, 60 60 60 60, 90 90 90 90, जो भी आप सिलेक्ट करते हो। ओके, सो वेरी सिंपली पुट, रिकरिंग डिपॉजिट सैलरीड लोग या जो बिजनेसमैन होते हैं जिनकी कमाई रेगुलर होती है, उनको उनके पैसे से थोड़ा पैसा सेव करना है। ओके, हाँ, आगे जाकर अभी ये है डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में 2 तरीके के डिपॉजिट है, अभी है डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में बेसिक फ़र्क क्या है? टाइम में टाइम हो गया, पब्लिक को पैसे वापस दे दिए। डिमांड में जब पब्लिक डिमांड करे, जब भले ही वो 2 दिन बाद हो, 4 दिन बाद हो, 4 महीने बाद हो, उनको पैसा दिया जाएगा। The first kind of demand deposit is a savings account. Many of your parents, almost all your parents, the students who are watching this lecture, सभी के माँ बाप के पास एक सेविंग्स अकाउंट डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल अकाउंट है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, प्रधानमंत्री ने, बाकी मिनिस्टर्स ने, सरकार ने, आरबीआई ने सभी लोगों को कहा कि आप बैंक में जाकर एक बचत खाता, सेविंग्स अकाउंट स्टार्ट करो, और अगर आपके पास पुरानी नोट है आप उसके अंदर उसको जमा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पैसे बच जाएंगे। तो मैक्सिमम लोगों के पास, वेदर वो सैलरी वाले हो, वेदर वो बिजनेस वाले हो, सभी के पास एक सेविंग्स अकाउंट होता है। उसमें आपको एसएमएस की फैसिलिटी मिल जाती है, उसमें आपको ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी मिल जाती है,
99% आपको एक डेबिट कार्ड मिल जाता है, तो आप ATM मशीन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो डेबिट कार्ड इंटरनेशनली लिंक्ड है तो आप दूसरे देशों में भी उस डेबिट कार्ड से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ये सारे फीचर्स जो है ना, इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम रहता है फिक्स डिपॉजिट और RD की तुलना में, कंपैरिजन में सेविंग्स अकाउंट में थोड़ा कम रहता है। बाकी आप जितने बार पैसा डालना चाहो डिपॉजिट या निकालना चाहो, कोई रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर नहीं है। हाँ, कुछ बैंक्स एक स्पेशल टाइप का सेविंग्स अकाउंट देता है जो एक फ्लेक्सिबल सेविंग्स अकाउंट होता है। तो बिजनेसमैन बैंक को बोलता है मेरी सेविंग्स अकाउंट में 20,000 होना चाहिए, 20,000, ज़्यादा मत रखना। मतलब अगर मैं डिपॉजिट करूं और वो 20 से ज़्यादा हो जाए तो बैंक को ये निर्देश दिया गया है कि जो 20 के ऊपर का पैसा है वो आप निकालो और फिक्स डिपॉजिट में जमा करो, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में जितना पैसा रहेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक फ्लेक्सिबल सेविंग्स अकाउंट होता है कि भाई 10,000 रखना, अगर 15,000 है तो 5,000 को फिक्स डिपॉजिट में डाल देना। हाँ, मेरे सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस अगर कभी कम हो गया तो ऑटोमेटिकली वो FD को आप बंद कर दो, वहाँ का पैसा सेविंग्स में लेकर आओ। तो ये एक तरीके का स्पेशल क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, करंट अकाउंट किन के पास में होता है? नॉर्मली ये बिजनेसमैन के पास में होता है। ओके, ये जो लोग सैलरी कमाते हैं उनको करंट अकाउंट बिल्कुल नहीं दिया जाता है। करंट अकाउंट में एक स्पेशल फीचर है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब आपके बैंक में हो सकता है 5 रुपया, आप निकालोगे 7 रुपया। मैथ्स में तो ये पॉसिबल नहीं है, बट करंट अकाउंट के ओवरड्राफ्ट की सुविधा में ये पॉसिबल है। तो ये 7 रुपया कहाँ से निकला? 5 रुपया अपने अकाउंट से, 2 रुपया बैंक ने हमें ओवरड्राफ्ट दिया, हमें एक लोन दिया। ये 15-20 दिन का होता है और आपको ये लोन इमीडिएटली रिटर्न करना है। तो डिमांड डिपॉजिट में भैया तुमने डिमांड किया और आप पैसे लेकर जा सकते हो। या तो सेविंग्स अकाउंट आता है या तो करंट अकाउंट आता है। ओके, अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट तो हो गया, एक था टाइम डिपॉजिट, एक था डिमांड डिपॉजिट। अभी पैसे आ गए, अब वो पैसे का बैंक क्या करेगा? क्योंकि बैंक के पास पे इतना पैसा आता है, इतना, मतलब ये मेरे स्क्रीन में फिट भी नहीं होगा, उतना पैसा आता है। बैंक उसे ज़रूरतमंद को भीख नहीं देता, नहीं, ऐसे हेल्प नहीं करता, बट बिजनेसमैन को लोन देता है ताकि बैंक को भी इंटरेस्ट मिल सके। उसको कहते हैं ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। अब ये जो लोन्स होते हैं ना, ये अलग अलग पीरियड में टाइम फैक्टर के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म लोन 1 साल से कम, ये वर्किंग कैपिटल के लिए काम आता है। इफ़ यू आर समवन हु इज वंडरिंग सर ये वर्किंग कैपिटल क्या है, वो पैसा जिसकी ज़रूरत आपको है आपके बिजनेस को 1 साल तक आराम से चलाने के लिए, बराबर। अगर किसी के पास में गाड़ी है और अगर वो बोलेगा यार 1 महीने तक मैं 10,000 किलोमीटर मैं चलाऊंगा, कितना मेरे पास में पेट्रोल होना चाहिए ताकि मेरी गाड़ी बंद ना हो, उसी तरह ताकि बिजनेस बंद ना हो, जो आपको पैसा लगता है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, मीडियम टर्म लोन 1 से लेके 5 साल के लिए दिया जाता है और लॉन्ग टर्म लोन 5 साल से ज़्यादा। तो ये एक मेन काम है लोन्स देना। और दूसरा है एडवांसेस देना। एडवांसेस 3 टाइप में रहते हैं। अगेन ये फाइनेंशियल मदद जो प्राइमरी फंक्शन है बैंक का, बैंक बिजनेसमैन के लिए करता है। कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट इज ऑलमोस्ट द सेम। द बिग डिफरेंसेस, ओके, कैश क्रेडिट आर एडवांसेस जो बिजनेसमैन को बैंक देता है, ये करंट अकाउंट वालों को भी मिलता है, ये सेविंग्स अकाउंट वालों को भी मिलता है। ओवरड्राफ्ट सिर्फ करंट अकाउंट वालों को मिलता है। ओके, इट प्रोवाइड्स कैश क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट पड़ती है वो, इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है उसके ऊपर। ओवरड्राफ्ट 15 से 60 डेज का मिलता है। जब एक बिजनेसमैन अपने जो बैलेंस है उससे ज़्यादा विड्रॉ करता है उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। वो एक नेगेटिव बैलेंस है, बराबर, वो 15 से 60 डेज का होता है।
आपको कैश क्रेडिट के लिए एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना है, सेपरेट रिकॉर्ड रखना है। बट फॉर ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट में ही उसका रिकॉर्ड रहता है, अलग कोई अकाउंट करने की ज़रूरत नहीं है। लास्टली, हाउ आर एडवांसेस गिवन? वेल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड, एक चैप्टर है जो अकाउंटेंसी में पढ़ाया जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब अगर आप कस्टमर हो, मैंने आपको गुड्स बेचा, तो मैंने आपको एक बिल दिया, आप वो बिल देखोगे, आप पढ़ोगे कि क्या लिखा स्टीवन सर ने, 2 महीने बाद मुझको 10,000 दो। आप बोलोगे सर बराबर है, 2 महीने बाद मुझे देना है, आप साइन करके मुझे दोगे। मैंने वो बिल आपसे लिया। नाउ दिस पेपर हैज़ अ वैल्यू ऑफ 20,000, 30,000, बट मुझे 2 महीने रुकने हैं, उसके बाद में मैं आपसे वो पैसे लूँगा। बट कैन आई डू समथिंग एल्स विद दिस बिल, जिस पे आपने आपका वादा दिया है? येस, आई कैन गो टू द बैंक एंड सेल इट। उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्यों कहते हैं डिस्काउंट? क्योंकि अगर वो था 20,000 का, बैंक मुझे मे बी 19,500 देगा, 500 रुपया काटेगा। वो क्या है? वो डिस्काउंट। बैंक बोलेगा हमको भी तो कमाना है, देखो मुझे 2 महीना रुकने की ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम ड्रॉवर है, आप कस्टमर हो तो आप ड्रॉई हो, और बैंक मुझे वो डॉक्यूमेंट को बेचने में मदद कर रहा है, और बैंक मुझे पैसे देगा। 2 महीने बाद बैंक आप कस्टमर से पैसे लेगा, कस्टमर को पैसा मिला, मुझे टाइम पे पैसा मिला, बैंक ने अपना कमीशन 500 रुपया कमा लिया, वो भी खुश, मैं भी खुश, कस्टमर भी खुश। दिस इज़ अ वे of providing advances to whom the people that require. Now these all come under the category of primary function, जहाँ पे पहला है पैसा लेना, accepting deposit, दूसरा है पैसा देना, granting loans and advances। बराबर? आप deposit कहो, उसमें time deposit अलग है, उसमें variety अलग है, demand deposit अलग है, उसमें variety अलग है, loans में variety अलग है, और जो एडवांसेस है उसके अंदर वैरायटी अलग है। ये सारा मिलकर आपको प्राइमरी फंक्शन टीच करता है, विच आई होप आपको मेरे एक्सप्लेनेशन से थोड़ा बेटर समझ आ चुका है। जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम सेकेंडरी फंक्शंस की चर्चा करेंगे, जिसमें मैं एजेंसी आपको अलग पढ़ाऊंगा और यूटिलिटी में आपको अलग पढ़ाऊंगा। आई होप आज जो पढ़ाया गया है आप सभी को पल्ले पड़ गया है, समझ आ चुका है। अगर आप पुराने हमारे मित्र हो तो कृपया करके शेयरिंग का काम करें और चैनल के रीच को इंक्रीज़ करने में हमारी मदद करें। अगर आप यहाँ पर पुराने हो तो शेयरिंग करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और दूसरों को, मतलब अपने दोस्तों को, अपने दुश्मनों को, सभी को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।